एमएसएस जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। सभी गणमान्य अतिथियों और प्रतिभागियों को बहुत खुशी और अपार उत्साह के साथ सुप्रभात। 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए यहाँ प्रस्तुत गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुए मुझे सौभाग्य की अनुभूति हो रही है। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि हम किसी भी शुभ कार्यक्रम के आरंभ से पहले श्री गणेश की वंदना करते हैं। तो प्रस्तुत है आपके सामने गणेश वंदना। शुक्लांबरधरं गणपतिमं शुक्लांबरधरं गणपतिमं नित्यं नित्यं जपो जपो नित्यं नित्यं जपो जपो विघ्न विनाशक विद्यादायक विघ्न विनाशक विद्यादायक वीर गणपति बजो बजो वीर गणपति बजो बजो शुक्लांबरधरं गणपति मंत्र नित्यं नित्यं जपो जपो विघ्न विनाशक विद्यादायक विघ्न विनाशक विद्यादायक वीर गणपति बजो बजो बाल गणपति बजो बजो वीर गणपति बजो बजो। अब मैं कार्यालय प्रभारी एकॉस्टी NIOT डॉक्टर NV विनीत कुमार से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे मुख्य अतिथि श्री केशव चंद्रा जी IAS मुख्य सचिव अंडमान निकोबार प्रशासन को बुके देकर उनका आभार व्यक्त करें। मैं डॉक्टर जी धरनी, समूह प्रधान, ग्रुप हेड MBT NIOT चेन्नई, हेलो, मैं हमारे अतिथि श्री नंदिनी मैडम, आयुक्त सचिव मत्स्य विभाग अंडमान निकोबार प्रशासन को बुके देकर उनका आभार व्यक्त करने मैं डॉक्टर R कृपाकरण, पूर्व समूह प्रधान MBT NIOT को श्री वल्लभ सिंह IAS सचिव मत्स्य विभाग अंडमान निकोबार प्रशासन को बुके देकर उनका आभार व्यक्त करने जाना चाहती हूँ। IAS मुख्य सचिव अंडमान निकोबार प्रशासन सुश्री नंदिनी पलिवाल IAS आयुक्त एवं सचिव मत्स्य विभाग अंडमान निकोबार प्रशासन श्री बलवान सिंह तगलन IAS सचिव मत्स्य विभाग अंडमान निकोबार प्रशासन, निदेशक मत्स्य विभाग अंडमान निकोबार प्रशासन और डॉक्टर R कृपाकरण, पूर्व समूह प्रधान MBT NIOT चेन्नई को अनुरोध करती हूँ कि कृपया वे दीप प्रज्वलित करते हुए इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें।
इधर आ जाना मुरली। सर को इधर कर देना मुरली। Morning to all of you, respected Chief Secretary, Shri Keshav Chandra, respected Ms. Nandini Paliwal, Madam, respected Shri Balwan Singh Jaglan, Sir, Director Kerry, Director Department of Fisheries, and officials of Fisheries, Andaman Nicobar Islands, participants, officers from other departments. It is my great privilege to give the welcome address. Distinguished dignitaries, colleagues and participants, I am extremely happy to welcome you all for the hands-on training in the open sea cage culture of finfishes. NIOT is an autonomous organization under the Ministry of Earth Sciences, Government of India, established in the year 1993 for developing reliable indigenous technology to solve various engineering problems associated with harvesting of non-living and living resources in the Indian exclusive economic zone. ACOSTI is carrying out various research activities under the NIOT, Ministry of Earth Sciences, with the help of Andaman Nicobar Administration for the technology development activities to support local fishermen communities, local people, and particularly all the island communities. With respect to the fisheries and aquaculture related activity, we are successful in fattening spiny lobsters in sea cages, mud crab fattening in cages, rearing of pens, development of and deployment of fish aggregating devices, design and construction and emplacement of artificial reef and open sea cage culture in marine finfishes. With the help of this hands-on training, we will bring prosperity in the life of coastal community and also other entrepreneurs along with the Department of Fisheries. Under the able guidance of our Chief Secretary and other officials, with these few words on behalf of Director, NIOT, ACOSTI, the entire fraternity of NIOT and my behalf, I want Keshav Chandra, IAS Chief Secretary, Andaman Nicobar Islands, who is taking tremendous steps in the development of fisheries in Andaman Nicobar Islands and spend his invaluable time for the fisheries related program by realizing the importance of aquaculture. I take this opportunity to extend warm greetings to Ms. Nandini Paliwal, IAS Commissioner cum Secretary, Andaman Nicobar Islands, for gracing this occasion. I extend a warm welcome to Shri Balwan Singh Jaglan, IAS Secretary Fisheries and Administration, who despite his busy schedule has agreed to attend this function. It is also a matter of privilege to welcome our Director, Dr. G. Ramadas, who is online today. I extend a warm welcome to Shri Piyush Vijay Karan, Director of Fisheries, Andaman Nicobar Administration, and also I extend
warm welcome to Dr. R. Kripaharan, former head and marine biotechnology, and and the group head Dr. G. Dharani, marine biotechnology group, and also I extend my heartiest welcome to other dignitaries, delegates, participants, and my colleagues and all other present in this occasion. I welcome you all once again for this wonderful occasion. Thank you. धन्यवाद सर। अब मैं श्री बलवान सिंह, IAS सचिव मत्स्य, अंडमान निकोबार प्रशासन को अनुरोध करती हूँ कि वे सभा को संबोधित करें। माननीय मुख्य सचिव महोदय, आयुक्त महोदय, NIOT के डायरेक्टर हु इज अवेलेबल ऑनलाइन, NIOT का स्टाफ, फिशरीज का स्टाफ, हमारे सहकारी समितियों के सदस्य, फिश फार्मर्स, सर के आने के बाद जब से CS सर आए हैं, फिशरीज पे एक विशेष एम्फेसिस दिया जा रहा है। हर सप्ताह फिशरीज की मीटिंग होती है, उसमें जो जो समस्याएं उनको हल करने का प्रयास किया जाता है, साथ ही साथ स्कीम्स को रिव्यू किया जाता है, नए तरीके से क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं सभी के लिए, छोटे हमारे जो मछुआरे हैं उनके लिए, जो डीप सी फिशिंग के लिए जाते हैं उनके लिए भी, सीवीड कल्चर, श्रिम्प्स, एक्वा कल्चर, सभी सेक्टर्स पे सर के डायरेक्शन पे अभी वर्टिकल्स बने हैं, एक एक टीम बनी है जो टीम उन क्षेत्रों में काम करेगी। कुछ पॉलिसी के लेवल पे हमारे गैप्स थे, उसको भी डील करने के लिए अलग से एक टीम बनाई गई है। साथ ही साथ हम लोग मिलके जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे NIOT है, कैरी है, फिश सर्वे ऑफ इंडिया है, बाहर से जो BOB बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम है, उसके लोगों को भी हम लोग इन्वॉल्व किए हुए हैं। हमारे पास साधनों की कमी नहीं। अंडमान के पास कोस्ट लाइन इंडिया का देखेंगे तो उसमें लगभग 2000 किलोमीटर लंबा कोस्ट लाइन हमारे पास है। अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ और साथ ही साथ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करें तो हमारे पास 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो पूरे इंडिया के जोन का 30% है। हमारा सी का वाटर बिल्कुल बढ़िया साफ है, कोई पोल्यूशन नहीं। तो हमारा जो भी प्रोडक्ट होगा उसकी क्वालिटी विशेष होगी, मार्केट में उसकी डिमांड होगी। साथ ही साथ हम लोगों ने ये देखा है कि ये सब पोटेंशियल होने के बावजूद भी उस पोटेंशियल को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट नहीं किया गया। इसमें कुछ कारण थे, सर की डायरेक्शन में कुछ गैप्स आइडेंटिफाई किए, उन गैप्स को एड्रेस करने का कोशिश किया जा रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे संसाधन हमारे पास हैं। एक प्रधानमंत्री मत्स्य योजना है, उस योजना में हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट से 138 करोड़ रुपीज़ है, लेकिन हम लोग अभी कुछ कारणों से उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर नहीं पाए। उसमें कुछ रिलैक्सेशन की ज़रूरत थी, वो केंद्र सरकार से कुछ आगे हैं। साथ ही साथ कुछ हमने लिखा है और रिलैक्स करने के लिए, तो उन पे भी काम चल रहा है। इसके अलावा यूटी की भी अपनी स्कीम है, जिसमें आप नई बोट लेते हो उसमें सब्सिडी, आपका कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में सब्सिडी, इंश्योरेंस में सब्सिडी, आपका जो फिशिंग नेट है या इक्विपमेंट है उसके लिए सब्सिडी। इन सब योजनाओं का भी प्रावधान है और योजनाओं में आपको फ़ायदा देने का है। कई बार ये लगता है कि जो असली फिशरमैन है उनको योजनाओं के बारे में पता ही नहीं। उसके लिए सर की डायरेक्शन पे अभी 2 वीक के लिए मत्स्य विभाग एक विशेष कार्यक्रम चलाएगा, जिसमें हम कोशिश करेंगे हर फिश लैंडिंग सेंटर पे, फिशरमैन विलेज में हर आदमी जो फिशिंग से इन्वॉल्व है उसको हम लोग, हमारे स्टाफ मिलेंगे, इन योजनाओं के बारे में बताएंगे। हम लोगों ने पम्फलेट छपवाए हैं, मुझे बताया गया है PMMSY के 4 लैंग्वेजेस में पम्फलेट छप चुके हैं। उसमें हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तमिल, तेलुगु, इन सब लैंग्वेज में पम्फलेट छप चुके हैं और इन सबको आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही साथ जब हमारे लोग आएंगे सिर्फ स्कीम के बारे में नहीं बताएंगे, आपको आपका कोई एप्लीकेशन है उसमें हेल्प करेंगे, एप्लीकेशन भी प्राप्त करेंगे और आपको किस तरीके से क्या क्या ज़रूरत है वो सब बताया जाएगा। इसके साथ ही मेरा सभी मछुआरा बंधुओं से
सहकारी समितियों से निवेदन है इस मौके का भरपूर फायदा उठाएं। आपके जो सुझाव हैं वो इस कार्यक्रम में भी दें। हमारे पास साथ ही साथ सर ने बोला है कि अनडेटेड एरियाज, जिन एरियाज में सुनामी के टाइम पानी भर गया था, उन एरियाज को भी पहचानने का हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया है। साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास कुछ लिस्ट भी आ गई है। इनका भी हम लोग एक पॉलिसी बना के, हो सकता है उसको भी लीज पे या किसी तरह देने का प्रावधान करें, क्योंकि उसमें भी एक्वाकल्चर का बहुत सारा पोटेंशियल है। इसके अलावा नए नए एरियाज में भी मैं समझता हूँ यहाँ पे भी बात की जाएगी। यहाँ वैसे स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्ट किया है, खुले समुद्र में जो पिंजरा में कल्चर होती है उस पर रखा गया, बट साथ ही साथ मेरा निवेदन है कुछ और चीज़ें भी इसमें बताई जाएँ सेक्टर के बारे में। और फिशरीज डिपार्टमेंट अपने कार्यक्रमों के बारे में, अपने स्कीम्स के बारे में भी बताएगा। आप लोगों से निवेदन है पूरा मन लगा के इस कार्यक्रम का फायदा उठाएं। आप इतनी भारी संख्या में आए और इतना अच्छा कार्यक्रम NIT ने किया है, ये बड़े हर्ष की बात है। ये एक शुरुआत है, हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। और अंडमान में इतनी पोटेंशियल है, अंडमान को फिशिंग से जाना जा सकता है। अभी तो टूरिज्म के नाम से जाना जाता है, कुछ ऐतिहासिक धरोहरों के नाम से जाना जाता है, फ्रीडम स्ट्रगल के नाम से जाना जाता है। आने वाले टाइम में अंडमान को फिशरीज के नाम से जाना जाएगा, ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। और मेरा ये मानना है विद इन अ ईयर विल टेक ऑफ। इसके लिए हम सर के डायरेक्शन में एक वर्कशॉप भी अप्रैल के 1-2 वीक में करेंगे, जिसमें इस फिशरीज उद्योग से या फिशरीज सेक्टर से जुड़े हुए बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे, सक्सेसफुल फार्मर्स को बुलाएंगे। और हम साथ ही साथ हो सकता है अप्रैल या मई से फार्मर्स का एक्सचेंज प्रोग्राम भी शुरू करेंगे। मेन लैंड पे जो लोग अच्छी फिशिंग कर रहे हैं उनको दिखाने के लिए इस तरह का एक कार्यक्रम भी शुरू करने का योजना हम लोग बनाएंगे। और उसको लोगों को क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो करेंगे। साथ ही साथ निर्यात की पॉसिबिलिटीज़ को भी एक्सप्लोर करने के लिए काम चला हुआ है, उस पर भी एक ग्रुप काम कर रहा है। सर के डायरेक्शन में ये कोशिश कर रहे हैं कि पोर्ट ब्लेयर से हम डायरेक्ट थाईलैंड में एक्सपोर्ट कर पाएँ। अगर वो हो जाएगा तो हमारे लिए, सभी फिशरमैन के लिए भी, आप फिश पकड़ के लेके आते हैं, आपका बिक गया, बाकी बचा तो वो कहाँ दे, मार्केट में डिमांड नहीं, तो आपको भी फायदा होगा इससे। ये ऐसे सोचने की जरूरत नहीं कि बड़े के लिए कर रहे हैं, बड़े के लिए नहीं, पूरे सेक्टर की ओवरऑल समग्र विकास के लिए सर की डायरेक्शन में कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं इतना ही कहूँगा, आप सबको एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा कार्यक्रम बहुत ऑर्गेनाइज हुआ है और आप इसका पूरा फायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर आपके ज्ञानवर्धक और प्रेरक शब्दों के लिए। अब मैं सुश्री नंदिनी पलीवाल IAS सचिव मत्स्य विभाग अंडमान निकोबार प्रशासन से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे प्रतिभागियों को प्रेरित करें। माननीय मुख्य सचिव महोदय श्री केशव चंद्रा जी, आज के हमारे मुख्य सचिव, डायरेक्टर NIOT, सेक्रेटरी फिशरीज, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, हमारी NIOT की टीम, हमारी कैरी की टीम और हमारे यहाँ पर आए हुए जो फिशरीज संप्रदाय के हमारे सारे फिशरमैन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और फेडरेशन के मेंबर्स, बहुत बहुत धन्यवाद NIOT का कि आपने हमें आज यहाँ बुलाया और इस मंच को इस्तेमाल करने का मौका दिया। जैसा कि ऑलरेडी जागलान साहब बता चुके हैं कि बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, बहुत सारी चीज़ सोची जा रही हैं, प्रयास किया जा रहा है माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में कि आगे फिशरीज सेक्टर को हम ले जा पाएँ। विस्तार से जागलान साहब आपको ऑलरेडी बता चुके हैं जो जो हम करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। दो छोटी चीज़ जो मैं कहना चाह रही हूँ इस मंच का फायदा उठाते हुए कि आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं। एक तो अब हमें बड़ा और पूरा सोचना होगा। when I say कि बड़ा सोचना तो जो अभी हमारा जो पोटेंशियल रियलाइज नहीं हुआ है, हम सब जानते हैं कि कितना पोटेंशियल है अंडमान निकोबार में फिशरीज के लिए। और दूसरा पूरा सोचना होगा कि
उसका बैकवर्ड लिंकेज और उसका फॉरवर्ड लिंकेज, जहां से आप मछली पकड़ते हैं उससे कहीं पहले से वो प्रक्रिया और उसकी जो तैयारी शुरू होती है, और जब तक आपकी मछली पूरी मार्केट में बिक नहीं जाती है, तो वो जो पूरा आर्क है हमको उस सारे एरियाज में काम करना होगा। दूसरी छोटी चीज जो मैं आपके समक्ष रखना चाहती थी कि काफी बार ये देखा जाता है कि फिशरीज डिपार्टमेंट की स्कीम फिशरीज तक सीमित रह जाती है। एनआईओटी की जो टेक्निकल नॉलेज है, जो एक्सपर्टीज है, वो एनआईओटी या कैरी तक सीमित रह जाती है और आप लोगों तक उसका बेनिफिट पूरा नहीं पहुंच पाता है। दूसरा मेरा जो आपके सामने प्रस्ताव है वो ये कि सबको साथ में काम करना होगा। जब तक कि फिशरीज की स्कीम्स आप लोगों तक नहीं पहुंचेगी और आप लोगों द्वारा इनिशिएटिव लेके उसका फायदा नहीं उठाया जाएगा और उस सारी कार्यवाही को हम कैरी है, एनआईओटी है, एमपीडा है, इनकी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है उससे नहीं जोड़ेंगे, ये तीन एक साथ जब तक एजेंसीज काम नहीं करेंगी, एक भी जिसमें अगर थोड़ी सी कमी रह जाएगी तो हमारा फिशरीज का जो सेक्टर है वो उस तरह से प्रगति नहीं कर पाएगा जैसा कि हम चाहते हैं और जैसा कि आई एम श्योर आप सब लोग यहाँ पर जो उपस्थित हैं, इंटरेस्ट से आए हैं, वो भी यही चाहते हैं। मैं एनआईओटी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे ऐसा बताया गया कि आज हमारे यहाँ पर ज्यादातर साउथ डिस्ट्रिक्ट के लोग आए हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर हमारी जो बाकी और जगह के फिशरमैन हैं उनके लिए भी अगर हम इस तरह का प्रयास कर पाएं और फिशरीज डिपार्टमेंट ये जो 3 दिन का समय यहाँ पर आप लोग बिताएंगे उसमें से एक कुछ समय निकाल कर आप लोगों ने जो पैम्पलेट बनाए हैं यहीं से उस चीज की शुरुआत की जाए, ताकि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो हमारे पास अभी इतना अमाउंट है और इतने सारे अच्छे बेनिफिट्स जिनका फायदा हम सब उठा सकते हैं उनके बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिले और इसका सब लोग लाभ उठाएं। पुनः मैं एनआईओटी का धन्यवाद करना चाहूंगी और उनसे आग्रह करूंगी कि इस तरह के जो प्रयास हैं वो निरंतर जारी रहें और आगे और लोगों के लिए होते रहें। बहुत धन्यवाद। मैडम, आपके सुनहरे शब्दों के लिए धन्यवाद। अब मैं हमारे निदेशक डायरेक्टर एनआईओटी से अनुरोध करती हूँ कि वे सभा को संबोधित करें। Good morning. Hope I am audible. Yes, sir. Can somebody confirm if I am audible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, thank you. Respected Chief Secretary, Andaman and Nicobar Islands, K.C. Chandraji, Ms. Nandini Paliwal, Commissioner cum Secretary Fisheries, and Sri Balwant Singh Jaglanji, Secretary Fisheries, Dr. Dharani, Head of the MPD Group of NIOT, Dr. Vinit Kumar, Scientist in Charge, FOST, Dr. Kirbakaran, distinguished invitees, participants of the training program. Very good morning and welcome. It may not be a good strategy to start my talk with apologies, but I think I owe it to especially the dignitaries there that I could not come there. I wished I could join physically there. Actually, Port has a different place in my heart actually, and I need only just an excuse to come there, but this time I could not make it there. I apologize for that. And coming to the present program, it is oft repeated that India has a long coastline of around more than 7,500 kilometers. But if you see the EEZ, the extended EEZ, and the areas given to us by United Nations, if you see our, I think, ocean area is as large as this landmass. So this large area is actually treasure trove of living and non-living resources. Government of India ocean policy is all about sustainable utilization of these ocean resources. This ocean policy was actually it was established in 1992 by the Government of India. In 1983,
Department of Ocean Development was established for achieving this objective. Now it is called Ministry of Earth Sciences. And in 1993, National Institute of Ocean Technology was established with a clear mandate of design, development and demonstration of technologies, intelligence technologies for the sustainable utilization of ocean resources. Later, Marine Biotechnology Group of NIOT was started, and the institute at Andaman, at the time it was called ANCOST, Andaman Nicobar Center for Ocean Science and Technology. Later it was reconstructed as ECOST, that is the Atal Center for Ocean Science and Technology for Islands. And we have been executing several projects, programs and missions as a part of NIOT and MOE's mandate. And we have been working in several areas like desalination, extraction of energy from the oceans, mineral resources, and sending unmanned vehicles up to 6 kilometers water depth, managing some observation buoys, including providing tsunami early warning systems, and exploitation of living resources is another part of our mandate. And for executing all these things, we have got world-class infrastructure, both at Chennai and Port Blair, as you can see. And we have a fleet of small 4 vessels for actually extending our activities into the ocean. So, coming to the present day of this program, we believe that fishing is similar to agriculture, but it's riskier, and it involves many stakeholders. So, but the excessive fishing and intrusion of trawlers from other countries, it is making the lives of the fisher folk very difficult. Under these circumstances, we have to innovate, improvise, and in short, we have to usher some disruptive technologies. I believe that ocean sea cage culture, open sea cage culture, is one of such initiatives. What we are trying to do is that instead of sending our fishermen behind the fish, we want to bring fish to the fishermen. Our sister concern, Indian National Center for Ocean Information Systems, INFOIS, it is providing advisories on potential fishing zones, telling fishermen where the fish may be available for fishing. Apart from that, we have started this open sea cage culture program. And being a technology institute, our mandate is to develop technologies. We are not into fundamental or basic sciences. So we have started developing reliability cages and offshore cages for getting this fish. And this was demonstrated in different states like Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, and Andaman and Nicobar Islands. Now, it has been a huge success, and we have imported this technology and we have given this training to several fishermen, and we are happy to note that their lifestyle really changed and their income increased and all, and it was a huge success. We often underestimate the ability or capacity of the common man to observe the technology, especially the new technologies. And as you can see, the mobile technology and the computer technology, it was very well adapted by almost entire population of India. Similarly, when we gave this technology to the fishermen, they rose to the occasion, and actually they brought something new to the table, and they also innovated. Now, it's heartening to see that Andaman and Nicobar administration has taken interest in promoting this technology. We thank the administration of Andaman and Nicobar Islands, especially the Chief Secretary and his team for all their efforts. I congratulate the participants and the stakeholders for coming forward for this progressive effort, and I congratulate the Marine Biotechnology team and the acoustic team for coming out with this innovative concept of this training program. And as you all know, this is the decade of the ocean as declared by the United Nations,
and the Sustainable Development Goal 14, that is life under the sea. It's actually, this resonates well with this kind of efforts, and this blue economy policy of India also has been unveiled, and of late the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, announced a deep ocean mission with a budget of around 4,800 crores for 5 years, and NIOT plays a major role in this one. One of the verticals is all about marine biodiversity, and another is about setting up a advanced marine station to bring about all the marine biotechnologists and marine bioscientists under one roof. So these two are under progress, and we can take advantage of this mission for coming out with more disruptive technologies like open sea case culture. In that sense, timing of this program or this workshop is actually impeccable. I once again congratulate the organizers and all concerned. Again, once again, I wish I could participate physically. I am sorry that I am not able to join. And we assure you that NIOT, especially FOST, will continue to support your activities and participate in the development of Andaman and Nicobar Islands. And I take this opportunity to invite you and your team to NIOT Chennai as well to see what we are in the process of now establishing implementing one program called Samudrayan, which is similar to Gaganayan, which takes 3 human beings to 6 kilometers water depth, and we have many more infrastructural facilities and programs which may be of interest to you as well. So I once again invite you and your team to NIOT Chennai at your convenience. Please do visit us. And now I take leave, wishing all the participants and the stakeholders a fruitful training program. Thank you. Jai Hind. धन्यवाद सर। अब मैं श्री केशव चंद्रा जी, मुख्य सचिव अंडमान निकोबार प्रशासन को अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया हमारे प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उनका मनोबल बढ़ाएं। मेरे साथ उपस्थित मेरी सहयोगी सुश्री नंदिनी पालीवाल जो आयुक्त हैं, मेरे सहयोगी बलवान सिंह जगलान साहब, डायरेक्टर NIOT, यहाँ पे FOST के OIC डॉक्टर NV विनीत कुमार और जो मेरे साथ उपस्थित हैं मंच पे, और यहाँ पे उपस्थित सारे फिशरमैन कम्युनिटी के और मेरे सारे सहयोगी। सबसे पहले अंत में भाषण देने का अपना बहुत बड़ा घाटा है। यदि आपसे पहले अच्छे वक्ता मिल गए तो आपको बोलने के लिए कुछ बच नहीं जाता है, फिर आप वही चीज़ रिपीट करते हैं और उतनी अच्छी तरह भी नहीं रिपीट कर सकते हैं जितने अच्छी तरह उन्होंने बोला है। तो ये हमेशा से पिटफॉल रहता है। आज भी वही है, सारी बातें मेरे सहयोगियों ने बता दी है और मेरे लिए बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। एक बात, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ NIOT को कि उन्होंने इस प्रयोग को आगे बढ़ाया, और ये मेरा मानना है कि भारतवर्ष में हम लोग करोड़ों हजारों करोड़ रुपए प्रयोगों पे खर्च कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हर एक आदमी का इसमें फायदा हो। ये प्रयोग सिर्फ इंस्टीट्यूट तक सीमित न रहे, ये क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है, जहाँ जिसके थ्रू हम लोग ये सारी टेक्नोलॉजीज को बढ़ा रहे हैं। और ये जरूरी है कि ये सारी टेक्नोलॉजीज इंडिविजुअल के इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाए, और तभी ये हमारा सक्सेस होगा कि हम इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो भी हम डेवलप कर रहे हैं उसमें लोगों को इन्वॉल्व करें और ये इंश्योर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इनकम बढ़े, इकोनॉमी एज सच बढ़े, तभी इसका मतलब है। अदरवाइज हम यदि
अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप करके रखे रहें, लोगों को पता नहीं चले, लोग 17वीं सेंचुरी की तरह ही फिशिंग करते रहें या फिश का उत्पाद करते रहें तो कोई फायदा नहीं है। और इसीलिए विशेष बधाई के पात्र हैं NIOT, जिन्होंने ये पहल लिया है और ये जो बहुत ही अद्भुत टेक्नोलॉजी का विकास किया है, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने शुरुआत की है। साउथ अंडमान के फिशरमैन कम्युनिटी को 3 दिन के इस वर्कशॉप में बताने के लिए। इससे उत्पादन तो बढ़ेगा ही, लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है कि एक दिन आएगा जिसमें सारे के सारे पूरा का पूरा हमारा जो EEZ है और समुद्र का इलाका है, इसमें सारे हमारे फिशरमैन इतना उत्पादन करेंगे कि हम लोग पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेंगे। पूरे साउथ ईस्ट एशिया मार्केट पे हमारा कब्जा होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। हम फिशरीज सेक्टर में, जैसा मैं बार बार बोलता हूँ और मेरे सहयोगी बलवान सिंह जी ने भी बताया, कि फिशरीज में हम ऐसा विकास करना चाहते हैं जिसमें पूरी कम्युनिटी का विकास हो। इसमें हर एक आदमी जो सबसे नीचे है, जिसने शायद पढ़ाई लिखाई भी नहीं की है, लेकिन वो फिशरीज सेक्टर में काम कर रहा है, वो बहुत गरीब है। हम चाहते हैं कि विकास वहाँ तक हो, जब तक विकास वहाँ पर नहीं होगा तब तक इस पूरे एक्सरसाइज का, इस पूरे प्रयास का कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए बार बार हम सब एक साथ मिलकर चलना चाहते हैं। और फिशरीज का तब तक विकास नहीं हो सकता जब तक दूसरे जैसे बड़े क्षेत्रों का विकास नहीं हो, जैसे फिशरीज एक्सपोर्ट का विकास नहीं हो, नए मार्केट को हम लोग नहीं कैप्चर कर पाए, नया ब्रांडिंग नहीं कर पाए, वो भी आवश्यक है। तो इस पूरे सेक्टर का डेवलपमेंट तभी होगा जबकि हम हर एक क्षेत्र का विकास करें। और हर एक क्षेत्र का विकास का में हमेशा ये ध्यान रहे कि हम लोग सब मिल के आगे बढ़ेंगे, तभी ये सेक्टर भी बढ़ेगा और आपस में भी हम लोग ग्रोथ करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी एक सेक्टर को ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं या कम ध्यान देना चाहते हैं, तो पूरा सेक्टर एक साथ बढ़ना होगा। और इसलिए आपने देखा होगा कि हम लोगों ने 4-5 डिफरेंट साइलोस बनाए हैं, जिसमें ये प्रयास है कि सबसे रिलेटेड पॉलिसी का डेवलपमेंट हो, ऐसी पॉलिसी बने, इन सारे क्षेत्रों का विकास हो और पूरा सेक्टर आगे बढ़े, ताकि पूरी इकोनॉमी में वृद्धि हो। और हम एक दिन ऐसा आए कि हमारा नाम हो, अंडमान के फिशेस के लिए पूरा जितना भी फिश मार्केट है वो जाना जाए और हम इतना बढ़िया उत्पादन कर सकें एक दिन। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडमान के दूसरे इलाकों में भी किया जाएगा। अभी तो साउथ से शुरुआत हुई है और ये बेहतर रहेगा कि जो ट्रेनर्स हैं वो क्षेत्रों में जाएं, क्योंकि नॉर्थ मिडिल बहुत दूर दूर से फिशरमैन को यहाँ आना संभव नहीं होगा। तो ये ट्रेनर्स ही हमारे जाएं, 3-4 दिन वहाँ पे रहें। और मैं आपने खुद ही देखा भी होगा, लेकिन जितना बढ़िया नॉर्थ मिडिल और दूसरे इलाके हैं उतना बढ़िया शायद पोर्ट ब्लेयर नहीं है। तो आपको भी अच्छा लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीख सकते हैं। और हम ऐसा प्रयास करें कि ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन तक सीमित न रहे। इसमें हमने चूंकि शुरुआत की है केज कल्चर की, तो इस तरह इंश्योर करें कि ये डेमोन्स्ट्रेशन तो ठीक है, लेकिन सही उत्पादन पे हम आ जाए कि कितने दिनों में हम कितना केज कहाँ तक ला सकते हैं। वैसा हमारी पॉलिसी बने, वैसा हमारा पूरा प्लान बने, ताकि जो भी हम लेके चले हैं, आगे बढ़े हैं, वो पूर्ण रूप से सफल हो। आज इतने लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आज वो 3 दिन तक सीखेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे। और हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है उतना ट्रेनिंग कैंप कराने की कोशिश करेंगे, ताकि हर एक आदमी जो भी इससे जुड़ा हुआ है सबों को पता चले कि क्या संभव है, क्या क्या हो सकता है, इसमें कितनी संभावनाएं हैं। उस सब संभावनाओं को जानकर फिर आगे बढ़े और फिर फिशरीज का विकास करें। तो आप लोग इतनी अच्छी संख्या में यहाँ पे आए हैं, आप सबों को बहुत बहुत बधाई। और फिर मैं एक बार फिर से डायरेक्टर NIOT और OIC डॉक्टर NV विनीत कुमार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। और मैं सारे यहाँ पे
प्रतिभागी जो यहाँ पे उपस्थित है उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। इसकी दूसरी लैंग्वेज में पूरे को हिंदी में कि वे मुख्य सचिव श्री केशव चंद्रा जी IAS को उनका आभार व्यक्त करें। मैं डॉक्टर R कृपाकरण, पूर्व समूह प्रधान MBT NIOT चेन्नई से अनुरोध करती हूँ कि वे नंदिनी पलिवाल IAS कमिश्नर सह सचिव को मोमेंटो प्रदान कर आभार व्यक्त करें। मैं कार्यालय प्रभारी डॉक्टर NV विनीत कुमार एकोस्टी NIOT से अनुरोध करती हूँ कि वे श्री बलवान सिंह IAS सचिव को मोमेंटो प्रदान करके उनका आभार व्यक्त करें। मैं डॉक्टर G धरनी समूह प्रधान MBT NIOT को मंच पर आकर धन्यवाद प्रस्ताव देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। तो आइए अब हम इसी विषय में हमारे चीफ सेक्रेटरी केशव चंद्र सर से बात करेंगे और जानेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में। बताइए सर। आज ये 3 दिन का वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है NIOT में, जिसमें फिशरमैन सारा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें NIOT ने जो डेवलप किया है एक टेक्नोलॉजी जिसको ओपन केज कल्चर कहते हैं, इसमें करीब 9 मीटर डायमीटर का केजेस रखा जाता है, जिसमें छोटे सीडलिंग से बड़ा फिश तक डेवलप होगा। और ये ऐसा बनाया गया है कि इसमें मौसम ख़राब होने पे भी इस केज में सारे फिशेस इंटैक्ट रहेंगे और बढ़ेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा एक पहल है और ये सफल होता है तो इसमें सारे फिशरमैन को, जितने भी यहाँ पे फिशरमैन काम करते हैं, उनको इस तरफ इनकरेज किया जा सकता है। और जैसा आपको पता है कि ऑलमोस्ट 70% जो इंडिया का फ़िश प्रोडक्शन है वो एक्वाकल्चर है। तो ये वैसे ओपन सी कल्चर होगा, लेकिन इसके थ्रू जो प्रोडक्शन होगा उसमें मछुआरों को कम रिस्क लेना पड़ेगा और ज़्यादा एश्योर्ड रिटर्न रहेगा। तो यदि ये सफल होता है तो ये बहुत बड़ी सफलता होगी अंडमान के लिए, और अंडमान की इकॉनमी में वृद्धि होगी। इसमें जो गरीब मछुआरे हैं उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। सर, हम ये काफ़ी दिन से देख रहे हैं, जब से आपने कमान संभाला है, जितने भी फिशरमैन कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए आप काफ़ी जो है आप हमेशा ही मीटिंग कराते हैं, और जितने भी लाभार्थी है उनके लिए आप हमेशा प्रयास करते हैं कि उनको हर चीज़ों का जो है लाभ मिल सके। तो उसके बारे में जितने भी लोग खास करके फिशरमैन इस समय आपको देख रहे हैं, 2 शब्द आप कहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार की जो स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसके तहत फिशरीज़ के सारे अंग के बारे में कोई न कोई स्कीम, बहुत अच्छी स्कीम बनाई गई है। हम लोग सब, हर एक आदमी जो सुन रहे हैं, ये इसका लाभ उठाएं। और इसके लिए हम लोगों ने किया है कि फिशरीज़ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स सारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, सारे फिशरमैन को बताएंगे कि ये ऐसा है, इसमें कैसे वो लाभ उठा सकते हैं।
और मैं चाहता हूँ कि जितना भी हमारा अनुदान मिला है हमें, वो पूरा का पूरा खर्च हो और अच्छी तरह ऐसा खर्च हो कि जिससे गरीब से गरीब आदमी जो जिस तरह नेट यूज़ कर रहा है, बोट यूज़ कर रहा है, उस सबों को अपग्रेड कर सके ताकि उसके इनकम में वृद्धि हो सके। और यही प्रयास है, सरकार का भी यही प्रयास है, हम सबों का यही प्रयास है कि इससे जो सबसे गरीब से गरीब आदमी है उससे ये लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा आपने अभी देखा कि हमने केशव चंद्र जी जो हमारे अंडमान निकोबार के चीफ सेक्रेटरी है, उन्होंने हमें ब्रीफली ये समझाया कि यहाँ पर जो भी प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में हमें ये बताया। और हमेशा ही वो जो है फिशरी समुदाय के लोग, फिशरमैन कम्युनिटी के लोगों के लिए हमेशा ही वो जब से हमने देखा है उन्होंने अपना पद संभाला है, वो हमेशा ही हर सुनने में गया है कि हर वीकली जो है उन लोगों के लिए जो है मीटिंग रखा जाता है ताकि उन लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। और हम आपको बता दें, अभी तक अंडमान निकोबार में जितने भी CS आए हैं उन सबसे ज़्यादा जो है इस CS जो हमारे केशव चंद्र जी है ये काम कर रहे हैं। ये ग्राउंड पे उतर कर हमेशा ही ये लगे रहते हैं काम पर, और हम आशा करते हैं कि जितना हो सके फिशरमैन कम्युनिटी के लोग हैं उनको इसका फ़ायदा पहुँचे। और आज जो यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ है वो भी हम आपको दिखाएंगे, देखते रहे आप। इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन महेश के साथ न्यूज़ अब तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।